हाँ जी, गुड इवनिंग। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ NCERT ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣਾ ਨੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਨ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਟਿੰਗ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜੇ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੱਟ ਜੇ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 90 ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 tan ਥੀਟਾ 1 + tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 tan ਥੀਟਾ 1 + tan ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿਆ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਸ ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ -π/2 ਤੋਂ π/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲਿਖ ਲਈ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਨ ਥੀਟਾ -1 ਤੋਂ 1 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -π/4 ਤੋਂ π/4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ tan π/4 1 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਥੀਟਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ -π/2 ਤੋਂ π/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਕਸ ਨੂੰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ। ਸੋ ਜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੇਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਤਾ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਣੇ, 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੱਟੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ JEE ਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ BSc ਆਨਰਸ ਦੇਣਾ ਕਿ BBY ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 2x, ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਿਮਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ -1 ਤੋਂ 1, ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਲਾਏ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਭਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਨ ਥੀਟਾ 1 ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਨ ਥੀਟਾ 1 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ π/4 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਥੀਟਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ π/2 ਆ ਜਾਊ, ਪਾਈ ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਪਾਈ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟੇ ਨੂੰ π-2 ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਟ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ 90 ਤੋਂ 180 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ π-2 ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ π-2 ਥੀਟੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਯੈਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ
-2 थीटा है, पाई -2 थीटा बना रहे हैं। सो आगे की किया, पाई ऐड कर देता है, पाई/2 आ गया। अब वाला कंस्टेंट तैयार 0 तो पाई विच आ गया, तो मतलब साइन विच वैल्यू वैलिड होगी। सो आ क्वेश्चन आ गया हूँ, पाई -2 थीटा आ गया, थीटे की वैल्यू tan इनवर्स, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਤੇ ਇਹਦਾ आंसर आ गया। सो माड़ा जिहा कंस्टेंट चेंज होया, सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। सो ये है कंस्टेंट दी। देखो सिंपल, अगर तुम NCERT करोगे, मैनू नहीं लगता एडी कोई दिक्कत हैगी है, तुम आराम नाल क्वेश्चन कर लेना हैगा। ईवन तुम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करोगे तो भी हो जाने ने, कोई क्वेश्चन नहीं। मैं अगले लैक्चर्स पेपर्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है। तुम देखियो वो भी बड़े आराम नाल हो जाने ने। फिर दिक्कत की है, दिक्कत समझण दी, इन्नियां चीज़ां औखियां तो नहीं CBSE पाती, बट अगर ट्रिग्नोमैट्री समझनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का कंस्टेंट समझने बहुत जरूरी ने। तुम देखो सारा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का है, सिर्फ लास्ट में जाके एक स्टैप डेरीवेटिव का है, इसका डेरीवेटिव किया। तो यदा मतलब जो थोड़ा ये अच्छी तरह समझ आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री दौड़ेगी, ठीक है जी। सही हो गया जी। सो ये चीज़ आ गई तुहाडे को। हुण आपां अगे चक लिया क्वेश्चन, फिर cos ऑफ 1 - x² 1 + x², ठीक है। इन्हें पुटिंग की करनी है, मैं तो एक रफली टेबल भी बना के दस दूंगा भी आ है भी पॉसीबल आ वैल्यू होंगी है, बट बैटर ये होंगे कि 11 की ट्रिग्नोमैट्री आती हो, जो मेरा दिल करता भी आ वाली वैल्यू पुट करके अंदर फार्मूला मैं कर लूँ। हुण मैनू पता है 1 - tan² थीटा 1 + tan² cos बनता है, और cos इनवर्स है, cos इनवर्स है। मेरी कोशिश है कि ये अंदर भी cos बन जाए तो कट जाए, नहीं बने साइन बन जाए 90 तो घटा लाँगे, बट cos का फार्मूला सीधा ही बनता है तो 1 - tan² 1 + अंदर की आ गया cos 2 थीटा। फिर क्या ये कैंसल हो जू ना, क्योंकि कंस्टेंट है, कंस्टेंट पहला सैटिस्फाई होगी। सो ले ली कंस्टेंट, एक्स लाइज बिटवीन दिस, जो एक्स लाई एक्स की पुट किया tan थीटा, तो एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 tan थीटा 0 to 1, ठीक है जी। सो यदा मतलब की है, थीटा लाइज बिटवीन जोड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, π/4, क्यों 1 तक π/4 होंगे, 2 थीटा। हाँ कंस्टेंट पूरी होगी जी, कॉस में है 0 तो पाई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 90 वाली कंस्टेंट तो पूरी हो ही गई। सो जोड़ा है तुहाडे कोल, तुसी उस रेंज में होने चाहिए हो, कित्थे होए ये टेंशन नहीं। तुसीं कहो कॉस थीटा तो 0 तो पाई दे विच हुंदा सी, जिहड़ी 0 तो 90 0 तो पाई च तां आई जानी है जी, ठीक है। सो यदा थीटे का tan इनवर्स डेरीवेटिव किया। सो डेरीवेटिव तो क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक है जी। हुण फिर सेम क्वेश्चन, मैं कंस्टेंट बदल दिते, सेम क्वेश्चन लिख दिता भी भाई आही क्वेश्चन करना है, कंस्टेंट बदलते एक्स लाइज बिटवीन 0 to इनफिनिटी कर दी, ठीक है जी। सो चलिए जी अगे, जो असी 0 to इनफिनिटी कर ली, फिर tan की वारी आई, थीटा भर दिता, तो जो एक्स की थां थीटा है तो इनफिनिटी रहना, तुहाडे कोल कटिंग होगी, इत्थे इनफिनिटी रहना, ठीक है। सो जोड़ा है तुहाडे कोल आपां इत्थे tan, इसदा मतलब थीटा कित्थे करूँगा 90 तक लाई करूँगा, ठीक है, 2 थीटा करूँगा, कॉस विच दिक्कत नहीं 0 तो पाई दे विच, इसदा मतलब कैंसल बड़े आराम नाल हो जाऊगा, बड़े आराम नाल 2 थीटा, तो आंसर आ गया। तो जे आपां पिछले क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन भी कोई दिक्कत नहीं आई, कंस्टेंट ना वही आंसर आया, तो इस क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन भी सेम आंसर आ गया। इसदा मतलब जे कोई क्वेश्चन, जे कोई बंदा कंस्टेंट इग्नोर करके भी चल जाता, सीधा ही क्वेश्चन कर दिंदा, कैंसल कर दिंदा, आंसर तो वह आ ही जाना सीगा। इस करके जे आपां क्वेश्चन कहिए भी आपां बोर्ड दे विच इन्ना ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं पैंदा, क्वेश्चन सौखा आ जाता है, बट जे कहोगे मैथ विच बहुत ज़्यादा चक्कर पै जाना, ठीक है जी। सो इसनूं ध्यान नाल देखना, कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने तुहाडे कोल भी जिहड़ियां ट्रैडिशनली चली जांदियां ने, बट होनियां नहीं चाहिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दवां, हुण आ तुहाडी बुक विच क्वेश्चन है लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है जी। मैं सिर्फ दसना चाह रहा, तो मान लो इसका डेरीवेटिव करना आपां, तो इसका डेरीवेटिव की करना, तुसीं करदे हो dy/dx, तो इत्थे 1/sin x कर देंगे हो, ddx ऑफ तुसीं sin x कर देंगे हो, और तुसीं की कीता 1/sin x, तो तुसीं इसका डेरीवेटिव cos x करता। हर बुक च एवें कीता होया, ठीक है जी। तो हर टीचर इसनूं ठीक करता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, बट सोच के देखो ज़रा, मैं आ साइन लॉग ऑफ साइन एक्स दिता, ये मैथ है, मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाया, सिंपल ए वाला ग्राफ है। हुण इस पॉइंट पे साइन ने 0 ली है, साइन n पाई 0 होंगे, मतलब साइन पाई 2 पाई 3 पाई सब तो 0 होने, ठीक है जी। तो जे इत्थे 0 है तो साइन 0 0 और लॉग 0 -इनफिनिटी, क्वेश्चन नॉट डिफाइंड, ठीक है। दूजी चीज़ लॉग ऑफ नैगेटिव नॉट डिफाइंड होंगे, तो तुसी आ पोर्शन देखो साइन का, अगर आ वाली वैल्यू पोर्शन से साइन वैल्यू लेंदा तो साइन नॉट डिफाइंड हो जाए, तो जिहड़ी चीज़ ही नॉट डिफाइंड है, ठीक है, आपां उहदा डेरीवेटिव कित्थों कड्ढी जा रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है।
इस करके मैं कह रहा कि मैथ कुछ होर है, ट्रैडिशनली सानू पढ़ाई कुछ होर जाते ने, बट क्योंकि सारे चलते चली जाता तो चली जाता। सोच के देखो ना, जिस चीज़ इसने ग्राफ उरे भी नैगेटिव लैनी, उरे भी नैगेटिव लैनी, हले तो ये साइन वेव है ने तो बहुत दूर तक जाना। सो नैगेटिव वैल्यू तो लॉग इन ही डिफाइन होंदा है, जब लॉग इन ही डिफाइन हैगा तुहाडे कोल, फिर तुसीं करोगे की तुहाडे कोल। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्वेश्चन कितना होना चाहिए, ये ਤੁਹਾਨੂੰ हर बुक 'ਚ क्वेश्चन मिल जाना हैगा, और हर बुक 'ਚ सोल्यूशन भी इदा ही होगा, हर टीचर ने भी इदा ही करना हैगा, ठीक है। बट जे क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ मतलब होना की चाहिए, पहला तो ऐ होना चाहिए लॉग ऑफ साइन एक्स ਇਹਦਾ मॉड होवे। मॉड ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मॉड ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ग्राफ आ हेठला पोर्शन है ਜਿਹੜਾ आ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਆ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉੱਪਰ आ जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ भी एक्स एन पाई ना होवे, सो एन पाई का मल्टीपल ना हो, जीरो की पॉसिबिलिटी डिलीट की, नैगेटिव की पॉसिबिलिटी डिलीट की, तो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन जोगा होया, ठीक है। सो इस करके ये चीज़ां ट्रैडिशनली और दूसरे दे विच फर्क पांदियां ने, थोड़ा जिहा ख्याल रखना। तां ही मैं कह रहा किते कंस्ट्रेंट लग्या किते नहीं, तुसीं किताब चक्को, तुसीं कहो सर तुसीं तां कंस्ट्रेंट दा रौला पाई जांदे हो, कंस्ट्रेंट तां किते नज़र नहीं आंदा। तुहानूं मैं एग्जांपल दसती सिंपली भी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल भी आ एड्डी वड्डी गलती आपां करदे हां ते आराम नाल चली जांदे। कोई भी नहीं सोचदा कि जदों मैं लॉग ऑफ ए फंक्शन लैना वा, जिस फंक्शन का मैं लॉग लै रहा वा, क्या वो फंक्शन आगे नैगेटिव बनता कि नहीं बनता, ठीक है। 100% नैगेटिव बनूगा तो साइन एक्स वाला तो मतलब नहीं डिफाइन हो। सो इस करके थोड़ा जिहा ख्याल रखना। ये वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लिया, वो मैं विच पेज वैसे ही ऐड कर दिता सी जस्ट समझाने लई तुहाडे को। सो हुण अगे फिर आप एक क्वेश्चन ले लिया, उही क्वेश्चन रिपीट देख लो, मैं क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा, आही क्वेश्चन सीगा, हुण भी आही है, ठीक है, बट बदलते कंस्टेंट, ठीक है जी। सो कॉस इनवर्स फिर मैं पिछों ही चक लिया जी, हूँ दोबारा किहड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें। कॉस इनवर्स जिहड़ा हैगा कॉस 2 थीटा कर लिया, अब कंस्टेंट इत्थे ने, ठीक है। टैन थीटा मान लिया, -π/2 तो आ हो गया, 2 ना मल्टीप्लाई करती, सो आ चीज़ आ गई। अब जिहड़ा हैगा मैंने जिहड़ा हैगा तुहाडे पास जिहड़ा 2 थीटा जिहड़ा है वो इहदे विच लाई करदा, तो गल बननी नहीं गई तुहाडे को, ठीक है जी। फिर आपां नूं ये पता है भी cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ -2 थीटा, ठीक है जी। ये तो थां ते लिखा जा सकता है, मतलब मैं -2 थीटा बारे सोचा। सो पाई माइनस -2 थीटा ग्रेटर दैन 0, ठीक है जी। तो इनू सैट कर लेता मैं 0, ठीक है, और पा के लिख लिया आप, ठीक है जी। सो अगले स्टैप दे विच ये हुण 0 तो पाई दे विच लाई, मतलब जिहड़ा मेरा पिछला क्वेश्चन है हुण ये लाई करन लग गया -2π, तो इत्थे तक तो सारिਆਂ ਨੂੰ जमा ही समझ आ गया ना। हुण बंदा कहंदा माइनस ना गुणा क्यों की, अरे कॉस तो नहीं बनता पिया, कॉस का प्रिंसीपल रेंज आंदा नहीं, फिर इनू चेंज करना, चेंज इदा करीदा भी असल च ना यह चेंज हो, तो यह मतलब cos 2 थीटा तो cos के अंदर नैगेटिव cos थीटा पा दा, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। सो अंदर पा लिए तो नैगेटिव है, नैगेटिव बनाने लिए मैं नैगेटिव ना गुणा की, निशान चेंज हो गए, निशान चेंज हो गए, तो 0 इस तरफ 2 थीटा और पा के लिखे। सो ठीक है जी, ठीक है। तो हूँ प्रिंसीपल वैल्यू च आ गई तो -2 थीटा एडजस्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, ठीक है जी। सो घूमन घेरियां तो मैं उस क्वेश्चन से दोबारा करी जा रहा तुहाडे कोल, ठीक है। तो इस करके थोड़ा जिहा ध्यान देना है कि हो की है, ठीक है। जो ट्रैडिशनली चलता ठीक है, पर जो कंस्टेंट क्वेश्चन दी आ गई फिर जरूर उन्होंने ख्याल रखियो। सो इस बार कंस्टेंट दे दी sin स्केयर 1 - ठीक है जी। मैं एक्स नूं tan थीटा पुट कर लिया, बंदा कहता tan थीटा पुट करे कॉस अरे 90 चों घटा लाँगे। सो आपां ने 90 दे विचों घटा लिया, ठीक है। जदों 90 दे विचों घटा लिया क्या ये घटी जा सकती है, इस तो पता लगूगा, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा आपां ने 90 माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कट दी, कट्टी तो आपां ने रीजन लिखा भी है tan थीटा इत्थे π2 थीटा इत्थे नैगेटिव ना मल्टीप्लाई किया, तो एंड च मेरा सारा आ गया कि 0 तो 90 च लाई करता तो कटिया जाऊगा। 2 थीटे की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स से डेरिवेटिव करता। सो इसका मतलब एक पुटिंग है, पुटिंग का ख्याल रखना। पुटिंग करनी किवें है, जिद्दां तुसीं चाहो फार्मूला बनना चाहिए, जो तुसीं लगदा मैं फार्मूला बना लेना, जिद्दां मर्जी पुटिंग कर लो। दूजा कंस्टेंट जे लिखा हुआ फिर एक्स बिलोंग टू ऑल रियल, फिर कंस्टेंट की चिंता नहीं की, जिद्दां ऑल रियल हैगा तुहाडे पास उदां ही एडजस्ट कर दो, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। सो टेंजेंट 1 + x स्केयर x तो x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है जी। हुण फिर देखना इस क्वेश्चन मैं फिर 2 तरीके ना किया है तुहाडे कोल। देखो 2 तरीके इस करके कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना जनरेट हो,
ठीक है भी तुहाडी बुक 'ਚ जो कीता होया तुहानूं एक आइडिया हो जाए तुहाडे कोल तुसीं पेपर दो दो तरीके नहीं करने मैं तो सिर्फ ये देखिया भाई हाँ इस तरह भी हो सकता इस तरह भी एक जिहड़ी हैगी है बंदे 'ਚ थिंकिंग डिवेलप हो जाए कि हाँ मैं रट्टा मार के नहीं चलना उस क्वेश्चन 10 सी हुण अगर ध्यान नाल सुणो अगर 1 माइनस एक्स स्केयर होवे तो नॉर्मली साइन कॉस पुटिंग ते सार दिंदा अगर 1 प्लस एक्स स्केयर होवे या कॉट स्केयर कम आंदा हुंदा या टैन स्केयर कम आंदा हुंदा या कॉट स्केयर या टैन स्केयर ठीक है पॉसीबली जिहड़ियां पुटिंग्स हुंदियां उहदा बुक विच चार्ट बनिया हुंदा बट बिना चार्ट याद कीते भी क्वेश्चन हो जाते सिर्फ दिमाग लगाओ हुण चलो मैं एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट कर लिया बंदा कहता जी कॉट क्यों नहीं किया हैगा ठीक है पहला टैन देखते हैं फिर देखते हैं कॉट है ना एक्स बिलोंग्स टू आर है सो आपां ने किया सीकेंट स्केयर थीटा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है कंस्टेंट कोई दी नहीं मैं बिना मॉड ही खोलिया है जे मैंने कंस्टेंट दी होंगी मैं मॉड जरूर खोलना सी क्योंकि मैंने पॉजिटिव नैगेटिव पता नहीं लगना सीगा जे मैंने कंस्टेंट के ऑल रियल नंबर बस फिर पॉजिटिव वाला केस लैके चलो गल खत्म है सो इसका सीकेंट आ गया तुहाडियां बुक्स विच ही इदां दिता हुंदा जी ये दो केस नहीं बनाए होंगे ठीक है अदरवाइज तुहानूं कल भी कहा सीगा कि जे एक्स स्केयर का निकालना है तो आह ही बनूगा अगे जाके मैं अगले क्वेश्चन फर्क भी दसदा सो सीकेंट का 1 ओवर कॉस थीटा तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ठीक है जी तुहाडे कोल टेंजेंट इनवर्स हो गया 1 प्लस साइन थीटा हो गया हुण 1 प्लस साइन थीटा का कोई फार्मूला नहीं गा तो 1 प्लस साइन थीटा दो तरीके नाल हैंडल हुंदा एक तरीका तो यह हुंदा कि कंप्लीट स्केयर बना लो देखा 1 प्लस साइन थीटा ना तो आप साइन 1 की वैल्यू साइन स्केयर थीटा बाई 2 कर लिए कॉस स्केयर थीटा बाई 2 कर लिए तो 2 साइन थीटा बाई 2 कर लिए कॉस थीटा बाई 2 कर लिए तो ये बन जाता साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्केयर एक पॉसीबिलिटी इदा होंगी है जे तुसी क्वेश्चन करना हो दूजी 90 चो घटा के कॉस बना लीदा सो मैं 90 चो घटाने वाली कर ली ठीक है कॉस बन गया नीचे कॉस 90 चो घटा लिया साइन बन गया ठीक है सो अपन आनी चाहिए पॉसीबिलिटी ठीक है दूसरी पॉसीबिलिटी आ ये मैं अगले क्वेश्चन यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा बिल्कुल दोनों मैथड क्लीयर हो जाए ठीक है हुण अगले स्टैप में की किया मेरे पास 1 प्लस इधर ध्यान नाल देखो मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा सी 1 प्लस कॉस थीटा हो 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2 पाई बाई 2 का पाई बाई 4 बन गया थीटा 2 साइन पाई बाई 4 थीटा बाई 2 पिछले लैक्चर भी एक क्वेश्चन तो एक्स बाई 2 लिखना रह गया सी पर तुम इन्ने सियाने हो कि इदा की गलती कई बार रह जाती है कि एक्स बाई 2 है क्योंकि फेस टू फेस कोचिंग नहीं है ना तो जोड़ा है फेस टू फेस तो बच्चा बोर्ड पर गलती नहीं होने दिंदा हुंदा बच्चा जो कहता सर एक्स बाई 2 रह गया जी हुण जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा होंगे ठीक है कई बार ध्यान नहीं रहिंदा तो पिछले एक लैक्चर मैनूं लगता उत्थे एक्स स्केयर मतलब एक्स बाई 2 सीगा लिखना तो एक्स लिखा गया सी तो कर लो सैट उन्नी बच्चे समझ आ जाती है मतलब उस चीज़ में बहुत ही गलती ना काउंट कराया करो आपे ठीक कर लिया करो ऐसी चीज़ सो 2 ना 2 एक कॉस कट गया तो अल्टीमेटली एक कॉट बन गया टैन ने कॉट में फिर नहीं कटना 90 चो घटा लो 90 चो घटाओगे नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा आराम ना हो गया अब फिर पाई बाई 4 बन गया थीटा बाई 2 बन गया कैंसल हो जाऊगा हूँ तुम को कंस्टेंट कोई नहीं लिखी अरे स्टार्टिंग से असी ऑल रियल वैल्यू टेंशन का दी कंस्टेंट ओके है तो ठीक है जी सारिया रियल वैल्यूज़ तो ट्रू ही सीगा तो वैसे भी टेंजेंट जोड़ा है सो इसनों इस ना कट दिता थोड़े पास तो 5 बाई 4 थीटा बाई करता तो कटू सो 5 बाई 4 थीटे की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स पर ही आप डेरिवेटिव कर लिया तो मेरा आंसर आ गया ठीक है जी सो हुण इसे क्वेश्चन में फिर दोबारा करिए क्वेश्चन वही लिखा मैं कोट पुट कर दिता मैं लगभग हर क्वेश्चन 2 बार करके दिखा रहा हाँ ठीक है मेरा पर्पस है कि तुसी कंस्टेंट की कन्फ्यूजन चो बाहर निकलो हाँ जो है वो है ठीक है जो मतलब थोड़े पास बई जिन्ना क चलता है जिन्नी क फ्रीडम सानू लिबर्टी मिली हुई है ठीक है चाहे तो पंजाब बोर्ड है तो चाहे तो CBSE जिन्नी क लिबर्टी मिली हुई है उन्नी तो टीचर दे के चलते हैं बट एंट्रेंस नहीं कोई थोड़ा कंस्टेंट्स की लिबर्टी दिंदा तुसीं को मैं जेई दे रहा तुसीं देखो क्वेश्चन सिर्फ यही है बई एंट्रेंस का मतलब हुंदा तुसीं ट्रैडिशनली जो सीखिया उन्होंने नवीं जगह पर अपलाई करना ठीक है हुण एक बंदा ये नहीं कह सकता जी मैनू हीरो का साइकिल तो आंदा जी एटलस का मैं चला नहीं सकता इसका मतलब जो मैं कहा मैनू जोड़ आता फिर मैं थोड़ी कहूँगा भी बुक के सवाल का जोड़ आता इस तो बाहर आया फिर तो मैनू जोड़ भुल जाता जी ठीक है हीरो का साइकिल तो मैनू आंदा एटलस से तो मैनू घबराहट हो जाती है
फिर नहीं, फिर तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण तुसीं कहोगे भी मारुति तो आती है जी, स्विफ्ट चलानी आती है, स्कोडा वेले औखा हो जाना। हाँ, एक दिन औखा हो सकता, 2 दिन औखा हो सकता, तीजे दिन तो समझ आ ही जाऊगा। ठीक है, ऐसा सेम स्टोरी है तुहाडे कोल। सो ट्रैडिशनल नॉलेज जिहड़ी है वो बहुत ज़रूरी है। एंट्रेंस लिए रट्टे मारी जा रहे हो, तुहाडे कोल फार्मूलिਆਂ ਨੂੰ बेस अपना है नहीं गा। ठीक है, डेफिनेशन आपां नूं क्लीयर नहीं हुंदी। ठीक है, क्वेश्चन आपां 100 करी जाने, तुहाडे कोल उस चीज़ का कोई बेनीफिट नहीं गा जब तक तुहानूं बेस नहीं क्लीयर हैगा। सो इस चीज़ का ख्याल रखना, मैथ याद करके नहीं चलता हुंदा, जिन्ने मर्जी सवाल कर लो तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा सिंपली ये मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना तुहाडे कोल। ठीक है, AI-EEE दे विच एक क्वेश्चन आया सी, वो कहंदा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर इज कॉम्पलैक्स नंबर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन इन आर्गेंट प्लेन, फ्रॉम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर फ्रॉम ओरिजिन इन आर्गेंट प्लेन। हुण ये क्वेश्चन आया तो बहुत सारे जब अपन ऐ ही नहीं पता आर्गेंट प्लेन तो ओरिजिन के डिस्टेंस नूं मॉडुलस कहने आ। ठीक है, तो बच्चों को पता ही नहीं लग्या भी क्वेश्चन की पाया। ठीक है, बड़े ठीक ठाक कहते घुमाते बच्चे भी पता नहीं जी की क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हूँ जिमें यही क्वेश्चन एवें पाता फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 - Z, तो हर बंदे ने कह देना जी √2, क्योंकि मॉड कढ़ना तो हरेक नूं आंदा, बट हरेक नूं ऐ नहीं पता हैगा कि आर्गेंट प्लेन च ओरिजिन तो पॉइंट के डिस्टेंस नूं जिहड़ा हैगा मॉडुलस बोलते हैं, इनू मैथ कहते हैं बस। ठीक है, सो x इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, इत्थे आप वैल्यू पुट की 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो जिहड़ा हैगा इत्थे कोसिकेंट थीटा आ गया, तो इत्थे तुहाडे पास cot थीटा आ गया। सो इनू आप चेंज कर लिया, चेंज किया, जो पीछे प्रॉब्लम उत्ते साइन वाली आ रही सी इत्थे नहीं आई, सो इत्थे आराम नाल कट गया, इत्थे cot आ गया, cot 90 चों कटा देना आपां ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो फिर इत्थे देखो नैगेटिव आ गया, पर cot का भी नैगेटिव हुंदा, नैगेटिव नैगेटिव प्लस हो गया। सो आंसर आ गया, आंसर मैं 10 ना भी कर दिता, आंसर मैं cot ना भी कर दिता। ठीक है, तो हुण जिहदे दिमाग 'च डाउट सीगा 10 पुट क्यों किया, cot पुट किया, दोनों चीज़ां अपने दिमाग विचों डाउट निकल गया अपना तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण आपां करना किहड़ा जो तुहाडा जी करे। ठीक है जी, जिथे तुहानूं लगे देखो पुटिंग्स जिहड़ियां हैगियां ने ना, पुटिंग सारियां अगर मैनू सीधी ट्रिग्नोमैट्री आती है और मैं देख लैना वा क्वेश्चन दे विच। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई किहड़ा फार्मूला बनता है और अगे जाके मैनू थीटे की एडजस्टमेंट करनी आती है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सौखे हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैनू ग्राफ पता हो, जिहड़ा साइन और कॉस का ग्राफ तो बहुत ही सौखा है, क्योंकि वो डिसकॉन्टीन्यूटी आती हुई नहीं, साइन कॉस च किते इन्फिनिटी नहीं बनती। बाकी 4 जिहड़े ग्राफ हैं उन्होंने विच इन्फिनिटी आती है। ठीक है, वो बाउंडेड नहीं होंगे, बट आपां नूं सारे पता होने चाहिए हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जो जरूरत पेगी देखांगे। सो अगला क्वेश्चन देख लीजिए जी। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है जी, 100% श्योर कैटेगरी का क्वेश्चन है तो देखो। ठीक है जी, सो हौसले ना देखना, टेंजेंट इनवर्स 1 + x² है 1, तो x ਨੂੰ tan थीटा पुट किया, तुझे को क्यों पुट किया, सिंपल जो फार्मूला तुहानूं दस्सिया 1 + tan या cot भरते हो तो √ आराम नाल हट जाता। सो x 0 नहीं है, बस इस करके है, मतलब कंसटेंट तो कोई नहीं दी। सो इसका सीकेंड बन गया जी तुहाडे कोल, आपां सैट किया 1 - cos बन गया, इत्थे तक दिक्कत नहीं। देखो मैं तुहानूं जिन्ने क्वेश्चन कराए ने ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री के क्वेश्चनस ने, सारे ही इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री वाले चैप्टर है ने, सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन चेंज आती है, अपर डेरीवेटिव करते हैं, उत्थे डेरीवेटिव नहीं करते होंगे, बाकी कुछ नहीं। इस लैक्चर तो बाद NCERT थोड़ी दौड़ेगी, तुसीं आराम नाल कर सकते हो। ठीक है, अगले स्टैप इत्थे 2 sin स्क्वायर थीटा cos कैंसल, थीटे ना थीटा tan इनवर्स आ गया। सो ये क्वेश्चन है जिहड़ा CBSE 5-6 बारी तो होना है, मैं कहना पिछले 10 सालों और पंजाब बोर्ड इस तो भी वध बारी होना। सो दसो क्वेश्चन की सी, कुछ भी नहीं सीगा, कंसटेंट भी नहीं दी हुई। इवन पेपर पाने वाला ये सोच के चलता भी कंसटेंट ना ही दो, बच्चे को कानून टेंशन पानी है। ठीक है जी, सो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगेन 100% श्योर कैटेगरी च तो लास्ट क्वेश्चन है, तो हौसले के नाल जिहड़ा हैगा ये। ठीक है, ये तुसी क्वेश्चन देखना हैगा, क्योंकि थोड़ी जी एडजस्टमेंट हैगी है। फिर यही कह रहा वहाँ बुक विच बिना कंसटेंट तो है, किसी बुक च कंसटेंट दिता है, किसी च बिना कंसटेंट तो है, और शायद जो बिना कंसटेंट तो होवे तो लोग इको केस ना सार देंगे ने। ठीक है, पर क्योंकि कंसटेंट है तो फिर मैं तुहानूं 2 केस बना के दस रहा वहाँ। पिछला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन सी, आ वाला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, विद कंसटेंट समझना है और पूरा फोकस करना है क्वेश्चन के उत्ते की हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल की क्वेश्चन हैगा, आपां देख लीए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, सो तुहानूं क्लीयरली दिखण लग जाए।
ठीक है। क्वेश्चन हैगा तुहाडे पास 1 प्लस साइन स्केयर साइन एक्स है अंडर रूट च है फिर माइनस है स्टेटमेंट तुहानूं दिख रही है और मैं तुहानूं हुणे पिछे पढ़ाया सीगा कि 1 प्लस साइन स्केयर ना भी एडजस्ट हो जाता सो मैं स्केयर ना एडजस्ट करता होल स्केयर भी बन गया होल स्केयर तो बाद ना मैं इनू मोड च कट लिया ठीक है जी। तो जोड़ा है तुहाडे कोल हुण उत्थे सवाल नंबर 1 कदे मोड पा लैंदे हो जी कदे मोड छड्ड दिंदे हो ठीक है। जे कंसटेंट नहीं दिती हुई ना मोड पाओ पहले क्वाड्रेंट च एडजस्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं उन्हें कंसटेंट ही नहीं दी हुई हुण जे उन्हें कंसटेंट दी हुई है तो जे कंसटेंट दी हुई है जब तक मैनू ये नहीं पता लगता वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट च कि नैगेटिव क्वाड्रेंट च मैं सवाल किवें कर लूँगा जब मैनू पॉजिटिव नैगेटिव नहीं पता फिर मैनू मोड लेना ही पैना है ठीक है जी। तो इस करके इस क्वेश्चन को ध्यान ना देखना बथेरे सारे किताबों के बिना मोड के फटे चेक सिस्टम है तो थोड़ा जिहा ध्यान ना देखना। एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन तुहानूं लोगों को आती है वो की हुंदी है एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नैगेटिव एक्स वैन लैस दैन आ जो इक्वल है वो चाहे हेठ लेना पा लो चाहे ऊपर लेना पा लो कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इत्थे तक मोड आ गया ठीक है जी। जोड़ा दूसरे वाला मोड है वो मैं कॉस आगे लिखा साइन पीछे लिखे फर्क कोई नहीं गा चाहे साइन आगे रख लो हाँ ठीक है जी। पहला कह रहे हैं फर्क कोई नहीं गा हाँ जिस बंदे ने मोड छड्डना वो लोग कॉस पहला रखते हैं ठीक है चाहे रट्टा लवा देंगे बंदे भी कॉस पहला रख ली वह मैं थोड़ा कारण दसदा वा ठीक है। अगर ध्यान नाल देखियो जो अगर मैं किसी क्वेश्चन की गल करा अगर मैं साइन 90 तक बनाना हो तो इदा बनता तो जे मैं कॉस 90 तक बनाना हो तो इदा बनता पहले 45 0 तो 45 विच हमेशा कॉस की वैल्यू वड्डी होंदी है 0 तो 45 अगर मैं 0 तो चलना 45 तक चलना तो कॉस का पोर्शन ऊपर है ग्राफ का ठीक है जी। हमेशा कॉस की वैल्यू वड्डी होएगी साइन की छोटी होएगी इसका मतलब जे 90 तक क्वेश्चन दिता हो हर किताब में जिन्हें मोड भी नहीं लिखे उन्हें कॉस आगे लिख लेना ठीक है जी। सो ख्याल रखना जी आगे तो मोड लिखे फिर आगे पीछे का चक्कर नहीं हूँ एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई है हाँ जी है x/2 लाइज बिटवीन 0 to π/2 होगा पक्की गल होगा हूँ तुम 0 to π/2 आ गए जो तुम 0/π/2 आ गए तो मतलब तुम पहले क्वाड्रेंट चों तो जोड़ा है तो ठीक है। अगर 0 to π/2 आ गए तुम पहले क्वाड्रेंट चों पहले च कॉस भी पॉजिटिव होंगे साइन भी पॉजिटिव होंगे यदा मतलब आ वाली रकम का तो मोड ही हट जाना क्योंकि फुल पॉजिटिव है ठीक है जी। तुसी क्या आ मेरी कंसटेंट है ठीक है जी तुहाडे कोल जिहड़ा जे कंसटेंट ना होंदी तो बुक च भी पॉजिटिव लिखा होंदा इत्थे कॉस माइनस साइन होंदा क्योंकि जे वो कंसटेंट ना होंदी तो उन्हें पहले क्वाड्रेंट से ले लेना सी पहले विच जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पहले 45 च कॉस आगे होंदा ठीक है। हुण जरा तुहानूं दिखाना 45 की गेम कित्थे आंदी जो आपां तोड़दे सो फिलहाल जिहड़ा मैं देखिया कि x/2 पहले क्वाड्रेंट च आ रहा तो आ भी पॉजिटिव है इसदा मतलब इसदा मोड तो उरों ही हट गया ये तो स्टोरी खत्म हो गई तुहाडे कोल ठीक है जी। हुण वारी किहदी आई तुहाडे कोल हुण आपां जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल अगले स्टैप पर चलीए अगले स्टैप की हैगा तुहाडे कोल हुण मैं क्वेश्चन चक्या यदा मतलब है कि मेरा 1 प्लस कॉस वाला काम था जो 1 प्लस साइन अंडर रूट वाला था कॉस x/2 साइन x/2 ना निबड़ गया ठीक है। अब जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण अगर ध्यान नाल देखो जरा ठीक है हुण ध्यान नाल देखियो हुण मैं जिहड़ा नैगेटिव वाला है देखो जदों तो पॉजिटिव है उदों तो कोई दिक्कत नहीं हुण मैं नैगेटिव वाला जिहड़ा है कॉस x/2 माइनस साइन x/2 नूं डिस्कस करन जा रहा हाँ भी ये चीज़ पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। मेरे को क्वेश्चन स्टार्टिंग सीगा 0 to पाई ठीक है जी 0 to पाई सीगा मैं 0 to पाई दे ना दो केस बना ले तुहाडे कोल एक केस विच मैं 90 तक ले लैना दूजे च मैं 90 तो वड्डा ले लैना ठीक है जी। सोच के देखो जदों मैं एक्स लाइज बिटवीन 0 to 90 लिया ठीक है तो x/2 कित्थे आ गया जी 0 to π/4 देखो पूरे बंदा क्वेश्चन राइज करता अरे सर 0 तो पाई तक क्वेश्चन सीगा तुसी π/2 तक क्यों ले लिया अरे दूसरा अगले केस च इंक्लूड करता वा ना पूरा इंटरवल लूँगा कारण सीधा हिसाब किताब है कि जो x/2 0 तो π/2 चलाई करेगा तो x/2 0 तो ये आएगा π/4 अगर 0 तो π/4 ग्राफ देखो तो कॉस उत्ते आंदा है अगर कॉस उत्ते आंदा है तो यदा मतलब कॉस माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होएगा यदा मतलब कॉस माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होएगा तो यदा जिहड़ा मॉड हैगा वो एवें ही टुट जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा इस करके असीं इहनूं केस 1 विच कंसीडर किया घटाओ वाली रकम नूं।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਸ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 90 ਤੋਂ ਪਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ π/4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ π/4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ cos ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਕ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ π/4 ਤੋਂ x/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ 0 ਤੋਂ 90 ਵਿੱਚ cos ਵੱਡਾ ਹੈ, cos ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਸੋ 0 ਤੋਂ 90 x ਸੀਗਾ, x/2 0 ਤੋਂ 45 ਸੀਗਾ। अब 45 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 90 ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੰਸਟੇਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ 90 'ਚ ਕੱਢਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰਮਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, cot ਆ ਗਿਆ, 90 'ਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਸਟੇਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਸਟੇਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਜੋੜ ਵਾਲੀ, ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਵੀ cos ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ 1/2 ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੂ, ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ 1/2 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, WhatsApp ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ फ़ोन ਲਓ ਅਤੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਰਹੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो अगर विजडम चाहिए है तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लैक्चर सुनने लिए तो चाहिए ही होगा, अदरवाइज़ अच्छिया किताबां पढ़ो, ठीक है जी। तो जोड़ा है जिन्नी देर लैक्चर सुनना उन्नी देर तो फ़ोन चाहिए ही है। तो देखो तुसी बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल होगे, ठीक है जी। ओके, शुक्रिया जी, थैंक यू।